discuss in the continuity of the previous lecture, right? That about the Gender Development Index. Today we will start from Gender Development Index, right? Gender Development Index. And Gender Development Index is there, right? So Gender Development Index is a sort of, you can say, it is a sort of the Human Development Index. It is the same as Human Development Index, which is Human Development Index, which is sensitive to, which is sensitive to gender disparities, which is sensitive to gender disparities in society, in various areas, in various fields, in various fields related with the HDI. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ रिलेटेड जो बहुत सारी फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में जो जेंडर डिस्पैरिटी कितनी है, इसमें हम उसको मेजर करते हैं, क्योंकि इट इज ट्रू दैट नो सोसाइटी, it is true that no society can be stable, balanced, we can say, or prosperous unless both the genders are at equal status. Unless both the genders are at the equal status. So ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इक्वल स्टेटस रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो टू सेक्स हैं, मेल एंड फीमेल, उन दोनों सेक्सेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन दोनों सेक्सेस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. जब तक there will be discrimination with the two sexes, till then you can say the future of the society will be, you can say, a little bit dark, little bit gloomy. The future of the society will be questionable till then, right? So that is why it is quite important for the society to think that, to work that women should be at par with the men, right? So this is important. Galaxy J7, who's there? Galaxy J7. Hello. So this is there. So that is why we had to move ahead. Okay. Simranjeet is there today. अच्छा आगे थी सिमरनजीत, मैं थोड़ा मैसेज देखा ना, ठीक है कि प्लीज एक्सेप्ट माय पे. चलो so human development index, so that is why due to this reason we had to move beyond the human development. So due to this reason we had to move beyond the human development to assess the gender disparity also.
to assess the gender disparity, right? So gender disparity has it is almost in every society. It is almost in every society in the world. वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी है. देयर आर certain biological reasons also. There are certain natural reasons also due to which you can say male had the privileged status in the society. So, but it is, you can say, a reality that in every society there is a gender discrimination to some extent, right? But it is important also to know that the gender discrimination increases with the that the gender discrimination increases with the fall in the level of development, right? So it means we can conclude that the countries with the low level of development, in those countries gender discrimination is more, and the countries which are comparatively developed countries, in those countries the gender discrimination is low, right? So gender discrimination के साथ you can mention this also. This is important to mention, right? And second important thing है जो हमने एक दिन लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारी सोसाइटी में, राइट, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द पीपल. जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किस में बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड प्रोडक्शन सोर्सेस, रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. इन चीजों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है. सर मोड ऑफ प्रोडक्शन रिपीट करिए. मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टेल्स द रिलेशनशिप between the individuals in a society and the production resources. ठीक है, एक सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, what type of relationship is there among those persons ਜਾਂ between the two. So ये हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करता है. हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन से पता चलता है कि क्या रिलेशन है. ठीक है, मिस्टर निशांक, यू आर आस्किंग समथिंग. हेलो. Yes sir, good evening. Good evening. Sir, I am asking just you have said that as the level of the development in a society increases, Yes. The gender disparity decreases, right? Yes. Sir, is it the development or more or less the individual thinking of the society? For example, if you consider the example of United Emirates. बेटा वंश, जितने भी सोशल फिनोमिना हैं, राइट? Yes sir. There are a number of factors which are affecting the certain phenomena, right? Phenomenon, you can say, right? So there is the mindset of the male also, right? There is the biological factors also, which I have already told. There is the level of development also. Okay, so many things are there. So here we were talking in the context of the development only. Okay, sir. It means it is one of the factors. Yes. Okay. Yes, it is not the only. Yes, it is not the only factor. So, but good, you have cleared your doubt. So Thank you, that's sir. good. Okay.
सो बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एक रिलेशन होता है। सो जैसे जैसे हम इसमें मूव करते हैं, सो मैंने आपको एक बताया था कि पहले सोसाइटी में जो कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था इन द बिगिनिंग, जब शुरुआत हुई थी, तो पहले ये होता था कम्युनल या प्रिमिटिव कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इसको, प्रिमिटिव कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। उसके बाद फिर हमारी सोसाइटी में फ्यूडलिज्म आया, ठीक है। उसके बाद हमारी सोसाइटी में आया फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म आता है, और फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आता है, ठीक है। फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म आता है। सो कैपिटलिज्म के बाद जो सजेस्ट किया जाता है कि कैपिटलिज्म के बाद फिर सोशलिज्म आता है, ठीक है। सोशलिज्म आता है, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आता है, राइट। एंड सोशलिज्म के बाद फिर सोसाइटी कम्युनिज्म में फिर मूव करती है, ठीक है। सो ये एक साइकिल है जो ऐसे चलता रहता है। सो ये सजेस्ट किया जाता है, बट देखते हैं कि ये जो साइकिल है ये कहाँ तक प्रूव है, क्योंकि कई बार साइकिल बीच में से कट जाता है, रुक जाता है ना। डिपेंड करता है, क्योंकि दो फोर्सेस काम करती हैं। जैसे अगर कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में आप मूव करोगे तो दो फोर्सेस पैरेलल वर्क करेंगी। एक वो फोर्स है जो चाहेगी कि जो कैपिटलिज्म है तो वो रहना चाहिए, जो कैपिटलिज्म की फेवर में काम करेगी। दूसरी फोर्स है जो कैपिटलिस्ट को दबा करके सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहेगी। इन दोनों में एक फाइट चलेगी, और उस फाइट में किसका अपर हैंड रहता है, तो वो डिटरमिन करेगा कि क्या ये सोशलिज्म से यू कैन से ये बैक चला जाएगा या ये सोशलिज्म से आगे बढ़ेगा इस बार। सो ये उसने डिटरमिन करना होता है कि किसका अपर हैंड रहेगा। सो यूजुअली दिस इज द यू कैन से ट्रेंड। सो जब हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो जेंडर डिस्पैरिटी फ्यूडलिज्म में हाईएस्ट जेंडर डिस्पैरिटी होती है, क्योंकि फ्यूडलिज्म में जो मेन यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर होती है, जहाँ रिलेटेड विद द नेचुरल रिसोर्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती है, ठीक है। सो इसमें एग्रीकल्चर कहाँ होती है, वहाँ क्या होता है कि there are lesser opportunities for the you can say females के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम होती है और मेल के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो फ्यूडलिज्म हम जागीरदारी सिस्टम कहते हैं पंजाबी में, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके पास बहुत बड़े पीसेस ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है। तो काफी जमीनें होती हैं और दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं और वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो ये एक फ्यूडलिज्म है। तो फ्यूडलिज्म में ये जो यू कैन से ये जो गैप है, ये गैप मैक्सिमम होता है, एंड धीरे धीरे जैसे कैपिटलिज्म में जाओगे गैप और कम होगा, सोशलिज्म में जाओगे गैप में कमी आएगी। तो इस तरीके से गैप है जो वो रिड्यूस होता है, राइट। And moreover, it all depends on the, you can say, policy ideology of the, you can say, your rulers as well. So there are so many things, क्योंकि इसमें बहुत सारे social factors भी आते हैं, इसमें cultural factors भी आते हैं. So many things are there. Yes, Mr. Nishant? Sir, can you please elaborate about the communal mode of production? I mean, the status of women in communal mode of production. Yes. Communal mode of production में जो women का जो role था, first of all, let me explain the communal mode of production, right? Does anybody know about this communal mode of production? Can anybody explain?
ओके, सो कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिमिटिव कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहता है, देयर इज द, यू कैन से नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्रिमिटिव कम्युनल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो प्रॉपर्टी इज द लैंड इज द, है ना, लैंड इज द कॉमन प्रॉपर्टी, लैंड इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की कॉमन प्रॉपर्टी होती है लैंड, ठीक है, ये होता है। उसमें क्या होता है कि ऑल द, मतलब अगर मैं उससे भी पीछे जाऊं तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी तो आज का कम्युनिज्म है। अगर मैं प्रिमिटिव मोड की हम बात कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव मोड में क्या होता था कि मैन वाज डिपेंडिंग ऑन, पहले हम उसको समझेंगे, मैन वाज डिपेंडिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, ठीक है। Agriculture was not developed yet. Agriculture was not developed yet. Was not developed yet. Okay. So there was no stable life. There was no stable life. Stable life. Because क्या होता था कि people remained wandering. People remained wandering in search of food. इन सर्च ऑफ फूड के सर्च में वो इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले मैं ये भी एक दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दूं। फिर धीरे धीरे when man learned the technique of agriculture, ठीक है, of agriculture, right? With that the stable life starts, उसके साथ stable life की शुरुआत हुई। क्यों? because man started cultivating the crops, and he had to fix himself, at one place to take care of his crops, okay? To take care of his crops. So इसके साथ स्टेबल लाइफ की शुरुआत होती है जब आदमी को एग्रीकल्चर करने का पता चला, ठीक है, इसके साथ स्टेबल लाइफ शुरू होती है। सो जब ये नहीं था, इससे पहले का जो मोड है उसमें क्या होता था कि लोग इधर उधर घूमते रहते थे, फूड गैदर करते थे, फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे और लेके आते थे। तो फिर उसमें क्या था बेटा, उसमें जो भी सोसाइटी है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। एक पार्ट ये था, इसको मैं ले लेता हूँ, और द अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी वाज दिस, ये ले लेता हूँ, और जो तीसरा पार्ट था सोसाइटी का उसमें मैं ये ले लेता हूँ। सो ये 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में मैंने उस समय की सोसाइटी को डिवाइड किया, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड टू यू।
ठीक है। सो ये था उस टाइम पे। तो क्या था कि यू कैन से these were the old people, ठीक है, old people. These were the males, these were the males, and these were the females, और ये females थी, ठीक है। तो उसमें फिर एक उस फेज में क्या हुआ, एक नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क हुई, ठीक है। देयर वाज ए नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क, नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क हुई, ठीक है। वो जो नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, क्योंकि जो फीमेल है इट इज कंपैरेटिवली डेलिकेट एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। इट इज कंपैरेटिवली डेलिकेट as compared to male, and female has you can say certain biological issues also, ठीक है, certain biological issues also, due to which her productivity comes down during certain duration in a month or so, right? उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो यूजली कम हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है ना। सो ड्यू टू दीज रीजंस एक नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क हुई। उस नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हुआ फिर कि जो हार्ड वर्क था, जो हार्ड लेबर थी, है ना, दैट गॉट असाइन्ड टू द मेल्स, ठीक है। हार्ड लेबर थी, जो हार्ड वर्क था, दैट गॉट असाइन्ड टू द मेल। और जो इजी वर्क था कंपैरेटिवली, है ना, उसको हम इजियर वर्क कह देते हैं कंपैरेटिवली, जिसमें हार्डशिप कम थी, सो कंपैरेटिवली इजियर वर्क वाज असाइन्ड टू द फीमेल, right? Comparatively easier work got assigned to the female. Okay, so उस कल्चर में क्या हुआ फिर कि जो मेल्स होते थे, ठीक है, ये लोग यू कैन से हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए निकलते थे, ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, और जो फीमेल्स होती थी वो घर का काम करती थी, है ना, पकाना, बच्चों की केयर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। सो और जो ये ओल्ड होते थे ये क्या करते थे, ये जो भी फूड वो गैदर या हंट करके लेके आते थे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे एक जस्टिसेबल तरीके से। तो ऐसा एक सिस्टम बना हुआ था, ठीक है, उस समय का। ओके मिस्टर निशांक, इज इट क्लियर टू यू? निशांक? It is clear. Sir, one more thing I want to ask. Okay. Sir, I doubt that the condition of the women in the extreme socialism, that is communism, Okay. was better Yes. from Yes. capitalism. Can you Yes. please explain how it was better? Yes, obviously, because capitalism is based on the concept of the, you can say, exploitation. Okay. Where the weaker is always exploited by the powerful. ठीक है। सो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, Made with the gender disparity also. यस, उसमें क्या होता है, Got it, sir. राइट, हाँ, got it. ओके, सो इट इज राइट। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? ठीक है। सो these concepts are very much important to develop your thought process, right? Until and unless your thought process is developed, you cannot do much in the examination. So that is why civil services examination is such a type of examination where you must have the conceptual clarity of everything. You would be able to provide the reason for everything, right? Because everything has been evolved over the period of time.
and there is, you can say, some justification behind that. So that is why, what is the justification behind that? We need to find that, right? So you can say, if you would go to tackle the you can say things in that way, then it would be easier for you to you can say develop an answer there in the examination. ठीक है? So अगर आप वुमेन की इस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लोगे, तो फिर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना इजी हो जाएगा, राइट? आपको वुमेन के स्टेटस के ऊपर बात करनी इजी हो जाएगी, राइट? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉवर्टी, वुमेन, जेंडर डिस्पैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के. सो दिस कांट बी इग्नोर्ड, राइट बेटा? ठीक है. और ये आपको मतलब जनरल लाइफ में भी काम आएंगे. तो फिर मैं अक्सर ये कहता हूँ पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट्स को, है ना, कि आप अच्छी एजुकेशन लो, आप ऑनेस्टली अपना काम करो, आप अपनी 100% इनपुट दो, क्योंकि लड़कियों के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन के साथ मतलब फैमिली में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. जिन फैमिलीज में गर्ल्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं करती, वहाँ उनकी डिसीजन मेकिंग में रोल उनका बहुत कम होता है. नंबर 1. नंबर 2, जिस फैमिली के अंदर वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं है, वहाँ वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम होती है ना? क्योंकि जब भी आप किसी से मतलब ठीक है, किसी के आगे मतलब हाथ फैला के जब आप मतलब पैसा मांगोगे, तो आपकी एक्सप्लॉयटेशन जरूर होगी. पेरेंट्स छोटे से बच्चे की भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, है ना? अगर वो कहता है कि मम्मी मुझे मतलब 2 रुपए चाहिए, है ना, मैंने कुछ खाना है, तो मम्मी उसको बोल देती है, अच्छा आपको 2 रुपए दूंगी, है ना, ऐसे कर, ठीक है, ठीक है, मतलब पहले मेरे लिए मतलब 1 गिलास मतलब पानी का उठा के लेके आओ, है ना? तो वो क्या है ना, ब्लैकमेलिंग है, एक्सप्लॉयटेशन है. बच्चे को 2 रुपए की जरूरत है ना? तो आपने देखा कि दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, है ना, कि अब मैं इससे मतलब पानी मंगवा लूँ ग्लास, है ना? सो मतलब किसी न किसी रूप में एक्सप्लॉयटेशन रहेगी, है ना, व्हेन यू डोंट हैव द इकोनॉमिक पावर इन योर हैंड. सो दैट इज वाई लड़कियों के लिए मतलब इस मतलब अपने करियर में सीरियस होना मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप मतलब इक्वालिटी चाहते हो, अगर आप एम्पावरमेंट चाहते हो, है ना, उसके बिना इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, फैमिली में डिसीजन मेकिंग में रोल आपका मतलब कम रहेगा. ठीक है. So that is why this is my sincere suggestion to all the girls, है ना. Yes, सिमरनजीत, ਤੁਸੀਂ हैंड रेज ਕੀਤਾ ਸੀ, I think रेडमी वाले सिमरन. Yes, हेलो. हेलो, हाँ जी सर. हाँ दसो. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ. Okay. सर एक्चुअली ना मैं किते काफी साल हो गए, बहुत ज्यादा साल मींस मोर ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10+ ਇਅਰਸ. Okay. ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼. yes there was a time. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. हाँ, there was a time कि Chinese society ਦੇ ਵਿੱਚ women were kept as slaves. Okay, and since the childhood they were forced to wear the, you can say, iron made shoes. हाँ, ठीक है, iron made shoes they were forced to wear because this was that they would not be able to, ठीक है, run away in any condition. ठीक है. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ग्रो अप हो गए, ठीक है, थोड़ी बॉडी डेवलप होगी, थोड़े पैर बड़े छोटे छोटे है ना, देन मतलब योर फीट वोंट बी एबल टू मतलब सपोर्ट यू. सो दिस वाज a height of the, you can say, slavery indication. Yes. Is that okay? So chalo, let us move further. So this was the condition, right? So here we should note that in feudalism, है ना, exploitation of women comes at the peak. Okay, gender disparity बहुत ज़्यादा रहती है feudalism में, because in feudalism there are very very rare opportunities, economic opportunities for the female, है ना. So that is why feudalism में female को मतलब स्कूल में जाने की इजाजत नहीं होती, स्कूल में एनरोलमेंट नहीं होती, क्योंकि सोचते हैं कि इसने करना क्या है तो कुछ नहीं,
जब कैपिटलिज्म आता है तो क्या होता है, मतलब मनी बिकम्स इम्पोर्टेंट ओवर एवरीथिंग एल्स, है ना। सो इन दैट केस मनी की वजह से, मनी क्योंकि मास्टर बन जाता है, तो एंड फॉर दैट रीजन वुमेन आर अलाउड टू गो आउट, ठीक है, फॉर द वर्क, फॉर इकोनॉमिक you can say work, so this is the case, right? So मतलब इस तरीके से जैसे जैसे मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आती है, वैसे वैसे सोसाइटी का मतलब कल्चर चेंज होता है, सोसाइटी का थॉट पैटर्न चेंज होता है ना। और वैसे वैसे मतलब जेंडर डिस्पैरिटी में भी चेंज आती है ना। सो ये हर एक चीज में वैसे वैसे चेंज आती है, ठीक है। एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं ये सभी को सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई पढ़ सके तो, छोटी सी बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है, मैन्स वर्ल्डली गुड्स, ठीक है। ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मैन्स वर्ल्डली गुड्स, ठीक है। इस बुक में मतलब फ्यूडलिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है ना। और इस बुक ने मतलब उस मतलब 16, 17, 18 सेंचुरी की न्यूज़पेपर्स की कुछ मतलब कटिंग्स लगाई हुई है। न्यूज़पेपर्स में मतलब एडवर्टीजमेंट जाती होती थी कि ए फैमिली फॉर सेल, ठीक है, ए फैमिली फॉर सेल, है ना, ठीक है। मतलब हस्बैंड वाइफ एंड विद यू कैन से मतलब 3 चिल्ड्रन, है ना, एंड सैलरी एक्सपेक्टेड, है ना, मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मील कि हमें ये चाहिए, एंड पूरी की पूरी फैमिली फॉर सेल। सो मतलब ये होता है फ्यूडलिज्म कल्चर, राइट। सो फ्यूडलिज्म में स्लेवरी होती है ना। फ्यूडलिज्म में यू कैन से जिसको हम मतलब बॉन्डेड लेबर कहते हैं वो होती है। फ्यूडलिज्म में मतलब हाइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होती है बट द नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन गॉट चेंज्ड, ठीक है। सो ये है, ओके। सो चलो, सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? हेलो? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, okay, Yes, sir. okay, okay. So now, Sir, yes, yes. book ਦੇ writer हाँ, कैसे? book ਦੇ writer कौन नहीं? वही ये नहीं मैंने याद, क्योंकि मतलब मैंने मतलब I have read this book about you can say 25 years ago. So Sir, it's Leo. It's Leo Huberman. I don't It's know. Leo Huberman. Okay, have you read it, Sabri? No, sir. I just looked for it on Amazon. Okay. Yes. Yes. Thank you. Yes, very beautiful book. Okay. I would also like to purchase it again because I have lost my, you can say, previous copy earlier. So there is now we will come on gender development index. Okay, अब हम इस पे आएंगे। हमने जो जनरल बात कर ली थी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट में GDI बोलते हैं, GDI बोलते हैं, ठीक है। So gender development index, you can say it is a gender sensitive, it is a gender sensitive extension of, it is a gender sensitive extension of the HDI. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जेंडर सेंसिटिव एक्सटेंशन है, ठीक है। सो इसमें मतलब यू मस्ट, है ना, टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट ये जो हमारा है, पहली बात तो ये HDI की एक्सटेंशन है, एक तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ HDI, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जेंडर सेंसिटिव है, बस ये दो बातों को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स डालते हैं, है ना। मान लीजिए उन्होंने लिख दिया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिख के, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये डाल दिया, और इसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट डाल दी कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ HDI, ये डाल दिया उसने,
इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ HDI। एंड दूसरी उसने स्टेटमेंट डाल दी है ना कि इट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, इट इज पब्लिश्ड बाय UN वुमेन, इसको ये पब्लिश करता है। सपोज ये दो स्टेटमेंट्स डाल दी और नीचे उसने आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसने पहली ऑप्शन दे दी आपको 1 ओनली, ठीक है। दूसरी ऑप्शन दे दी उसने आपको, यू कैन से 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। तीसरी ऑप्शन उसने आपको दे दी बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। और चौथी ऑप्शन उसने आपको दे दी कि neither 1 nor 2, neither 1 nor 2, दोनों में से कोई भी नहीं है ना। तो आपको उसने ये दो दे। सो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये HDI की एक्सटेंशन है या नहीं एक्सटेंशन, या मतलब ये कोई सेपरेट इंडेक्स है ना। पहली कंफ्यूजन तो वहां पड़ी है। दूसरी कंफ्यूजन है कि UN वुमेन ने इसको पब्लिश किया है या नहीं किया है ना। सो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि HDI की अगर एक्सटेंशन है तो इसने तो फिर इसको UN वुमेन ने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि HDI UNDP पब्लिश करता है ना। लेकिन अगर ये HDI एक्सटेंशन की मतलब एक्सटेंशन नहीं है तो फिर इसको UN वुमेन पब्लिश कर सकती है ना। तो आप इस दुविधा में आप वहां फंस जाओगे, इस कंफ्यूजन में, तो आप आंसर को मतलब आप अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है, ऑब्जर्वेशन बेटर चाहिए है ना। सो ये रिक्वायर्ड है UPSC के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको सीरियस रहना होगा। सो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के एग्जामिनेशन, राइट। सो नेक्स्ट मैं लेता हूं अब, यू कैन से इट इज जेंडर सेंसिटिव एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इट मेजर्स ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स, ये मेजर करता है, इट मेजर्स जेंडर गैप्स इन, इट मेजर्स जेंडर गैप्स इन, ये 3 चीजों में जेंडर गैप्स मेजर करता है, राइट। कौन कौन सी 3 चीजों में ये जेंडर गैप्स मेजर करता है? नंबर 1 ये मेजर करता है जेंडर गैप्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारा कल भी हमने बात की थी। नंबर 2 मेजर करता है एजुकेशन में जेंडर गैप्स मेजर करता है, एंड नंबर 3 ये जेंडर गैप्स मेजर करता है, यू कैन से इसमें अपना इनकम में, ठीक है। सो ये इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम बोर्ड ये इसमें भी मेजर करता है। सो ये 3 चीजों में जेंडर गैप्स को मेजर करता है, जो हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। इट मेजर्स जेंडर गैप इन दिस, यू कैन से 3 things, right? But in this one thing is important. So it has to be adjusted for life expectancy. It has to be adjusted for life expectancy. This point is important, right? It has to be adjusted for life expectancy, right? Life expectancy. See, there is one very important, interesting point, है ना, कि अगर आप कहीं की सेक्स रेशियो देखते हो तो 1-2 प्लेसेस को छोड़ करके आपको क्या मिलता है कि सेक्स रेशियो में क्या रहता है कि इट इज यू कैन से चलो इसको, हाँ, इट इज फेवरेबल टू मैन, इट इज फेवरेबल टू मैन। ये मेल की फेवर में रहती है सेक्स रेशियो। यूजली हम क्या देखते हैं कि सेक्स रेशियो में
number of males is more as compared to the number of females. ऐसे ही देख रहे हैं ना हम, ठीक है? ओके, ये तो सबने देखा है ना, राइट? Yes, sir. लेकिन ऐसा क्यों है? What are the reasons behind this? Yes, Mr. Nishant, you have raised your hand. I think because women is still considered to be a weaker sex among the society. Okay, right. Anybody else? Also, the people consider male as a symbol of prestige, and they will move on their, we can say, gene pool, etc. Okay, right. And Their name, etc. Okay, right. Anybody else? कोई और पर्सन एक्सप्लेन करना चाहोगा? नहीं, ठीक है. सो इसके पीछे बेटा 2 रीजंस हैं, ठीक है. इसका आप कह सकते हैं कि इसके पीछे जो रीजन है, देयर कैन बी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस, ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस, ठीक है. जैसे अभी एक्सप्लेन किया है मिस्टर निशांत ने, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस. सोसाइटी में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजंस हैं जिनकी वजह से फीमेल थोड़ा पीछे रहती है. मेल डोमिनेटिंग माइंडसेट है, इकोनॉमिक पावर मेल के हाथ में रही है, एंड जो फीमेल है उसको हम मतलब हाउस होल्ड कोर्स तक सीमित करते हैं. सो एंड फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन बहुत है ना. सो फीमेल्स को यूजुअली कन्वेंशनल सोसाइटी में मतलब फीमेल्स वर नॉट वांटेड, है ना. ऐसा होता था कि एक लड़का जरूर हो जाए. पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे एक ये भी कारण है कि कुछ परिवारों में 5-5, 6-6 लड़कियां हैं, लेकिन वो मतलब दे केप्ट ऑन प्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन, है ना, जस्ट फॉर द वांट ऑफ ए मेल बेबी, मेल चाइल्ड. यस, ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. चलो, तो ये तो हो गया बेटा सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजन, ठीक है. एंड एक दूसरा जो मैंने आपको इंटरेस्टिंग रीजन बोला था कि देयर इज नेचुरल कॉजेस आल्सो, नेचुरल कॉज, ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज न्यू, इफ यू विल explain it in your UPSC examination, give it in your UPSC examination, ठीक है. सो इसमें बेटा देखो बेटा, हमने छोटी छोटी बातों में, है ना, हमने अपने आपको डिस्टिंग्विश करना है दूसरे एस्पिरेंट्स से, ठीक है. सो बस डिस्टिंक्शन ही मैटर करेगी आपकी, है ना. तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है. सो आपने सीखना कि मैंने कैसे डिस्टिंग्विश करना है, मैंने कैसे कुछ नया देना है. सो बेटा अगर हम नेचुरल कॉज की बात करते हैं तो इसमें बस एक ही चीज है ना. सो पहली बात इसमें ये है ना, कि यू कैन से कि नेचुरली, है ना, नेचुरली मोर मेल्स टेक बर्थ, ठीक है, टेक बर्थ देन फीमेल्स. ये नेचुरल है, ठीक है. आप इसको और डेप्थ में जाके स्टडी करना. नेचुरली मोर मेल्स टेक बर्थ देन फीमेल्स, राइट. फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स के बर्थ ज्यादा होते हैं. क्यों? बिकॉज इसमें रीजन है, बिकॉज इसमें एक रीजन है बेटा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल्स इज हायर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल्स इज हायर. जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, राइट, एज कम्पेयर टू मेल्स. दिस इज द वन पॉइंट, ठीक है. एक तो ये है इसमें. और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो मेल्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट of males is higher than those of than that of females. Akshay beta, are you getting me?
ठीक है. सो infant mortality rate of males is higher than that of females, right? सो ये एक नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से नेचर की तरफ से, है ना, more males are bound to born than the females because nature has to maintain a balance. ठीक है. सो उस बैलेंस मेंटेन करने की वजह से यूजुअली 1000 फीमेल्स के पीछे 1006 के आसपास मेल्स बर्थ होंगे, because it is expected that some of the males will die during their childhood or during their infancy. It is there. लेकिन ये क्यों होता है? ठीक है. इसकी स्टडीज बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी मतलब फाइनल कंक्लूजन में अभी तक स्टडीज नहीं पहुंची. दिस इज मतलब ए स्टैटिस्टिकल, यू कैन से, इन्वेस्टिगेशन which tells about this, which just says, ठीक है, कि दिस हैपन्स, राइट. सो ये वाला है जो, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. एंड ड्यू टू दिस ओनली जो हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट इज एडजस्टेड फॉर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज किसी सोसाइटी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल एंड फीमेल के लिए सेम नहीं होती. इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल के लिए हमने मेल के कंपैरिजन में 5 इयर्स ज्यादा रखी है. ठीक है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल हैज बीन टेकन, ठीक है, हैज बीन टेकन 5 इयर्स मोर देन, ठीक है, 5 इयर्स मोर देन 5 years more than that of female, than that of male. Okay. Nishant, you want to ask some question? Sir, I have two doubts actually. Okay. So first of all, I have read in my biology in my elementary standard that the probability of the fusion of the Y chromosome and X chromosome are equal. Okay. Secondly, sir, if we consider both of these reasons which are given by you, which are first is that the life expectancy of the females is higher as compared to males, and the second, the infant mortality rate of the males is higher than that of females. Okay. Then the number of males should be greater than the females. You give the reason that nature loves symmetry. Yeah, I have read about this, but in many of the science books that nature loves symmetry. And so, what would be the possible reason that nature always tend to maintain a balance between everything? What could be the possible reason for this? Answer my No, yes. Your first question is that population of males should be much higher than, you can say, that of the females. Yes, Your sir. one question is that. Okay. Your one question is that population of males should be much higher than. Okay. Males should be much higher than females. Okay. One question is that. Second question we have the. That despite if we consider that nature loves symmetry and Okay. it always tend to maintain a balance in everything, then why are there many states, for example, let us consider the example of Kerala, which are reciprocating these statistics? Yes. So beta, basically I have already you can say noted, I have already, you can say, said this, that I have already said this, that there are certain states where the this rate is, this you can say, high. Okay. So you can say, I am coming to the point, why females are higher. Okay. Why females are higher? Why females are higher than males in some states? यही है ना आपका बेटा क्वेश्चन, है ना? In some states. These are the two questions. Yes, sir. I am just asking what could be the possible conditions. Yes. I am coming to the point. So आपका जो first point है कि population of males should be much higher than females, right? पहली बात तो ये है बेटा कि सोसाइटी का जो भी एटीट्यूड है, ठीक है, जो कल्चर है, कल्चर फीमेल के अगेंस्ट जा रहा है. ठीक है. सो वो क्या होता है, मतलब जैसे बर्थ से पहले, है ना, मतलब
फीटस किलिंग है जो, ठीक है, सिलेक्टिव फीटस किलिंग होती है जो, है ना, तो वो किसकी होती है, फीमेल फीटस की, राइट, ठीक है। एंड जब हम सिलेक्टिव किलिंग करते हैं तो फिर फीमेल का नंबर कम हो जाता है ना। सो नेचर ने तो जस्ट 1000 के पीछे 5-6 मेल्स का डिफरेंस डाला था कि ड्यू टू द नेचुरल रीजंस, है ना, मेल्स डेथ रेट विल बी हायर एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। बट उसके बाद हम लोगों ने सोसाइटी में मतलब सिलेक्टिव किलिंग स्टार्ट कर दी है। एंड ये जो सिलेक्टिव किलिंग है, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द फीमेल ऑल द टाइम। ऐसा होता है ना निशांत? हेलो? Yes, sir, I got it. But sir, I want to add one more thing. Sir, despite the selective fetus killing of the females inside the fetus of women, sir, you have told that the life expectancy of, the infant mortality rate of the female is higher than that of females. It means that less than 1 year of age, more number of males are dying as compared to females. Yes. So more are is dying. okay, sir? Is it not enough to compensate for the effect that is caused by the fetus killing? I'm telling beta. Here beta we have to see, है ना, rate of right female fetus killing, ठीक है, rate of female fetus killing कितना है, और जो हमारा जो नेचुरल, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेल्स का मतलब कितना ज्यादा है फीमेल से, ठीक है, मेल्स मोर देन फीमेल्स। इसको हमें इन दोनों चीजों को बेटा हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करने के बाद ही आप इसका प्रॉपर मतलब आंसर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो बेटा हमारा जो रेट ऑफ मतलब सिलेक्टिव किलिंग है फीमेल्स का, है ना, वो बेटा ज्यादा है। एक सेकंड में एक कॉल ले लूं। हेलो, हाँ बेटा, हाँ की चीज वो बात देख दें, कोई नहीं तो ऑन के देखेंगे, ठीक है। मैं नहीं, मेरा साला मैं बात देखूँ तो सो ठीक है। सो बेटा आई वाज कमिंग, है ना, कि हमें बेटा ये देखना पड़ेगा कि ये कितना है, ठीक है। सोसाइटी में क्या हो रहा है कि ये जो रेट है, जो ये रेट है सिलेक्टिव फीटस किलिंग का, जो रेट है फीमेल फीटस किलिंग का, ये बेटा ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू द, ठीक है, नेचर which is favoring the you can say this ना मेल। सो नेचर जितनी फीमेल की फेवर करती है उससे ज्यादा हम फीमेल्स को हम किल कर रहे हैं सिलेक्टिव फीटस किलिंग में। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। ओके, यस। Also, I guess there can be another fact that can trigger, that can also increase the infant mortality ratio, which can decrease the infant mortality rate of males. That is that the nutrition that is given to the females is far much of lower quality as compared to males in certain areas which are quite backward right now. Yes, despite that beta, है ना, this is the natural condition, and despite that the females मतलब survive, देखना। Yes, sir. They are surviving. Sir, one more thing I want to ask, sir. Just as the government is taking certain steps against the female fetus killing, is it possible in the coming years that that the sex ratio will tend to favor the females in the coming years? बेटा देखो अगर हम इसको सेट कर लेते हैं, सब कुछ हम इसको ठीक कर लेते हैं, है ना, तो इसमें भी दो बेटा बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये कब होगी, जब हम मेल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जब हम उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बेटा नेचर के भरोसे रहेगा तो बैलेंस रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको को कंट्रोल कर लेंगे ज्यादा तो फिर क्या होगा, देन मतलब फीमेल्स नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है मतलब कि मेल्स नंबर तो बढ़ेगा, है ना। एंड दूसरा है, अगर हम मतलब सिलेक्टिव फीटस किलिंग को हम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, देन किसी भी सोसाइटी में मतलब फीमेल्स का रेट है जो वो रेशो बढ़ सकती है मेल से, ठीक है, ऐसा होता है।
ठीक है, ऐसा होता है, फीमेल्स की रेशियो बढ़ सकती है। केरला में है, Kerala में is okay, sir. Got it. राइट क्यों है, क्योंकि है बिकॉज दोज आर द मल्टी प्रोग्रेसिव पीपल, है ना, कंपैरेटिवली डेवलप्ड स्टेट, है ना, दोज, ठीक है, मतलब दे आर द प्रोग्रेसिव पीपल, सो मतलब They are वो not the डिफरेंट, orthodox thing right हाँ now. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। क्लियर बेटा? Yes, sir. Got it. I think it is clear to everybody now. Yes, sir. Jashan, Gursimran, Kamal, Palak, and Yes, sir. Navreet, etc. है ना, मैं मनप्रीत सारे जने मैंने दस दिया करो ठीक है। Hello. Yes, sir. ठीक है, जे किसी का मैं नाम भूल गया हूँ तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सिमरनजीत बेटा, आर यू गेटिंग? सिमरनजीत फ्रॉम अमृतसर। Yes, sir. ओके बेटा, सो सर नमस्ते, मैंने अभी ज्वाइन किया। अंजना। यस अंजना, हाउ आर यू? ठीक हो? गुड सर, हाँ जस्ट रीच्ड। ओके ठीक है। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। सो बेटा इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि द यू कैन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, जहाँ द GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, assumes that इसमें assume किया जाता है that women will live an average, ठीक है, will live an average of 5 years longer, an average of 5 years longer, ठीक है, 5 years longer than males। तो जो वुमेन है वो मैन से 5 साल ज्यादा जी पाएंगी, हम ये मान के चलते हैं, इसमें इसको हम एडजस्ट करते हैं। सिमरन तुझसे भी शायद कोई क्वेश्चन पूछने लिए हैंड रेज किया सही या नहीं? हाँ जी, मैं कोई नहीं, बाद च पूछ लूंगी सर। कोई गल नहीं, ठीक है। दिस इज देयर, है ना, सो दिस वाज आल्सो देयर, है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी फैक्टर्स है वो वैसे ही रहेंगे जैसे होते थे, ठीक है। सो ये जो GDI है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, GDI वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इट्स इम्पोर्टेंट। सो GDI वाज इन, हाँ सो बेटा एक बात तो आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि GDI कौन पब्लिश करता है? UNDP पब्लिश करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने एक। और दूसरी बात क्या है बेटा इसमें कि GDI को UNDP पब्लिश करता है, और दूसरी बात क्या है कि GDI was added to Human Development Report, यहाँ मैं HDR लिखता हूँ, Human Development Report in 1995, ठीक है, 1995 से इसको ऐड किया था, ठीक है। एंड HDR कब से पब्लिश करनी शुरू की थी? 1990 से, है ना, ठीक है, और उसके 5 इयर्स बाद इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी बीच में ले लिया, राइट। सो दैट इज देयर, है ना। सो द एम ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो एम है, एम क्या है? इट्स एम इज टू मेक HDI जेंडर सेंसिटिव। इसका एम है कि HDI को हम जेंडर सेंसिटिव बनाएं, ठीक है, बिकॉज इफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एफर्ट्स, ठीक है, गो इन फेवर ऑफ ए सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, देन इट वुड हैव नो मीनिंग एट ऑल फॉर यू कैन से, है ना, देन द यू कैन से मतलब डेवलपमेंट शैल लूज इट्स पर्पस, ठीक है। सो डेवलपमेंट का पर्पस तभी सार्थक होगा अब अगर दोनों जेंडर्स को उसका बेनिफिट मिलता है। अगर एक जेंडर मतलब दूसरे जेंडर की मतलब कॉस्ट पे ज्यादा ग्रैब करता है शेयर, तो देन डेवलपमेंट नहीं होगी, वो सोसाइटी में डिस्पैरिटी रहेगी, ठीक है। और बेटा हम लोगों ने बेटा कनेक्शन देखो बेटा, हमने कैसे डेवलप करने हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सो जस्ट, है ना, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब आपका मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप हो, है ना, मैं नहीं चाहता कि मतलब आप मेरे ऊपर मतलब डिपेंडेबल हो, है ना, मतलब आप अपना बिल्डअप करो, है ना। इसमें ऐसा होता है बेटा कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? दैट इज द प्रॉस्पेरिटी, है ना, अल्टीमेट गोल तो हमारा सभी का यही है ना, ठीक है, क्लियर।
Yes. ठीक है, if anybody disagrees can tell me, right? And prosperity के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? prosperity के लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए, है ना, प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी या हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्शन के लिए हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। ये तो हम सबको चाहिए, है ना, ये तो कॉमन थिंग है। सो हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, सोसाइटी में हमें क्या चाहिए? पीस चाहिए, है ना, सोसाइटी में हमें पीस चाहिए, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। सो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? हमें सोशल ऑर्डर चाहिए, ठीक है, हमें सोशल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। और सोशल ऑर्डर के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? सोशल ऑर्डर के लिए हमें चाहिए बैलेंस, है ना। सोशल ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। सो इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी, राइट। सो इक्वालिटी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें जेंडर डिस्पैरिटी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें जेंडर डिस्पैरिटी खत्म करनी पड़ेगी, जेंडर डिस्पैरिटी हमें खत्म करनी पड़ेगी उसके लिए, वन, ठीक है। और दूसरा, उसके लिए हमें कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को डिफीट करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफीट द कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिफीट द कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, culture of exploitation. So this is important for the ultimate prosperity, है ना, in a you can say safe and secure environment. Otherwise क्या होता है कि पर्सन अमीर बन जाता है, ठीक है, अंबानी जैसा अमीर बन जाता है, लेकिन उसको अपनी फोर्सेस रखनी पड़ती है क्योंकि उसको थ्रेट है चारों तरफ से। क्यों थ्रेट है? क्योंकि इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, ऑर्डर नहीं है ना। वो लोग जो बिलो द जो यू कैन से नियर का मतलब सरफेस बैठे हैं, तो वो लोग अंबानी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई ही इज नॉट फीलिंग सिक्योर। सो बेटा दैट इज व्हाई इस बेटा ऑर्डर को याद रखना है, कहीं भी यूज कर लो, ये आपका एक यूनिवर्सल ऑर्डर है। इसके बिना जो भी अपने प्रोग्राम हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इक्वालिटी के लिए लोग चाहते हैं हमें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी के लिए लोग चाहते हैं हमारी पार्टिसिपेशन हो, है ना, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो। सो इक्वालिटी में से फिर सब कुछ निकलेगा आपका, है ना, फंडामेंटल राइट्स निकलेंगे, फ्रीडम निकलेगी, राइट टू लाइफ निकलेगा, है ना। सो इक्वालिटी में से फिर बहुत कुछ निकलेगा। एंड दिस इज द रूट टू प्रॉस्पेरिटी, है ना। आप ये रूट फॉलो करो और आप प्रॉस्पेरिटी देख पाओगे। जब तक आप इस रूट को फॉलो नहीं करोगे आप प्रॉस्पेरिटी को नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द अल्टीमेट रिकमेंडेशन, ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट रिकमेंडेशन। अगर कोई मेरे से डिसएग्री करता है तो बोल सकता है। कोई डिसएग्री नहीं करता? सर डिसएग्री तो नहीं, एक कई द्वार तो समझा दो सर। कौन जशन है? हाँ जी सर, बस वो प्रो मोटा मोटा समझा। हाँ समझो। तो ठीक है बेटा, मैं हूँ पंजाबी च दसन लग गया। अक्षय बेटा मैनू माफ करना है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज आई वुड हैव टू एक्सप्लेन इन पंजाबी नाउ। बेटा जिहड़ा प्रॉस्पेरिटी हुंदी है, खुशहाली हुंदी है ना, अल्टीमेट गोल है सारिਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ भी मेरा भी, है ना, स्टेट का भी एंड नेशन का भी।
सब ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਅਰ ਦਾ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਫ है ना, which we were living in 1950s or 60s, ठीक है। They don't have electricity, they don't have the medical facilities, है ना, they don't have the pakka houses, है ना, and etc etc, है ना, they don't have good opportunities. So that is why when such a huge balance is there in the society, तो क्या होता है? फिर हमारा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है ना। आप ठीक है, तो सोशल ऑर्डर के लिए बैलेंस चाहिए, और बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? इक्वालिटी चाहिए। तो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए फिर ये सब कुछ आता है, ठीक है। निशांत, you want to say something? Sir, despite the fact I don't understand the whole thing as it was in Punjabi, but I understand it partially. But sir, I want to ask one thing. Sir, as Naxalism, you have said that there is no development, etc. in those regions, right corridor region of India. Sir, I just want to ask, sir, if the government is trying to develop those areas, the people are not helping government. Instead, they are See beta, restricting the government in the development process. See beta, once the infection starts, then it takes time to, you can say, settle down. ठीक है, and the government, ठीक है, and the government has started paying, you can say, attention after those areas got disturbed. Before that, there was no attention of the government. It means, sir, in the minds of those people, they have developed a certain predefined image of the government. Obviously, that they are always going to harm them. Obviously. Okay, that is one of the reasons. That is why they are, you can say, supporting the Naxalites. Yes. So there are certain social, cultural, and psychological reasons behind that. Economic reasons as well, right? So आप किसी भी चीज को बेटा आप इस तरीके से लेकर के आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। So try to address it in that manner, ठीक है। So इससे आपकी आंसर में मतलब ओरिजिनलिटी भी आएगी, ठीक है, और वो ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो मतलब आप उन चीजों को छोड़ दो ना। सो नेक्स्ट है GDI टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि GDI टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द। देखो बेटा, मैंने आपको मतलब कितनी चीजें इसमें हमने डिस्कस करने की मतलब कोशिश की है। इवन आपका मतलब ऐसे भी रेडी करवा रहा हूं मैं, नॉट ओनली आपको मैं GDI पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो GDI takes into account, GDI takes into account not only average. GDI takes into account not only average of general, not only average of general level of well-being, हम इसमें जनरल लेवल नहीं लेते एवरेज का, एंड वेल्थ within a given country or society, you can say, but focuses on how this wealth and well-being focuses on
how this wealth and well-being is distributed between different groups within the society, right? Between different groups within the society. So GDI में हम डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करते हैं, ना कि ओनली प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबीइंग। सो प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबीइंग तो हम HDI में करते हैं, है ना, देखते हैं उसमें, लेकिन GDI में हम प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबीइंग के साथ हम एक चीज और ऐड करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ओके बेटा, सो ये एक चीज, एक नई डायमेंशन आ गई इसमें, है ना, GDI में। सो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि इसमें GDI is calculated for 166 countries. GDI is calculated for 166 countries. GDI है जो वो 166 countries के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 166 countries, and it brackets the countries. It brackets the countries. Okay? It brackets the countries into 5 groups. ये countries को 5 groups में ब्रैकेट करता है, ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 ऐसे करता है, into 5 groups, into 5 groups, ठीक है, based on absolute deprivation, ठीक है। So it shows, next आप इसमें कर सकते थे, it shows, ठीक है, it shows, ठीक है। I think somebody is trying to write on my screen, है ना, ठीक है। So please, if there is any question, you can ask me, ठीक है। So it shows, right, how you can say how much women are lagging behind, of men in these three, in the 3 aspects of HDI, या in the 3 fields of HDI। हमें ये पता चलता है कि वो कितना पीछे हैं in the 3 fields of HDI। इसमें बेटा और कुछ नहीं होता, in the 3 fields of HDI। तो इसमें हम करते क्या हैं, चलो अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसमें हम करते क्या हैं बेटा, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हम 2 HDI निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 HDI निकालते हैं। एक HDI होता है फॉर फीमेल, ठीक है, फीमेल्स, HDI फॉर फीमेल्स लेते हैं, फॉर फीमेल्स, राइट। एंड इसमें दूसरा हम लेते हैं बेटा HDI फॉर मेल्स, राइट। दूसरा इसमें हम लेते हैं HDI फॉर मेल्स। एक हम फीमेल्स के लिए लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं HDI फॉर मेल्स, राइट। दूसरा हम मेल्स के लिए लेते हैं। तो फिर इसमें हम क्या बेटा करते हैं, हम देखते हैं रेशो ऑफ, ठीक है, रेशो ऑफ HDI, ठीक है, रेशो ऑफ HDI females, HDI of females to that of males। हम फीमेल्स और मेल्स की HDI की रेशो कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इफ द, ठीक है, रेशो ऑफ फीमेल्स, है ना, अगर फीमेल्स की रेशो है जो HDI की वो ज्यादा है देन द मेल्स, है ना, देन द मेल्स, then it signifies that the women in the society are more deprived than men, okay। Then it signifies that the burden of that the share of women getting from development, okay, development is disproportionate, ठीक है, is disproportionate to their, तो बस is disproportionate इतनी है ना, कि वुमेन को जो शेयर मिल रहा है वो डिस्प्रपोर्शनेट है
उसको एडिक्वेट शेयर नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। सो फिर इसमें हम क्या देखेंगे बेटा कि यहाँ हम फीमेल लिख लेते हैं और इधर मैं लिख लेता हूँ मेल, ठीक है, इधर मैं मेल लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम बेटा डालते हैं फीमेल और मेल के बीच का गैप है, ठीक है, फीमेल और मेल के बीच का जो गैप है यहाँ मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये लेता हूँ, ठीक है। सो जैसे जैसे फीमेल और मेल का गैप बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे वैसे GDI की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो द हायर वैल्यू ऑफ GDI indicates that you can say there is a much, okay, higher value of GDI indicates that the gender disparity is higher in the society, and the lower value indicates that there is less, you can say, disparity. So in case, so now I am taking, है ना, in case यहाँ हम लेते हैं कि in case the female is equal to male, female's HDI is equal to male's HDI, तो इधर मतलब क्या है कि there is no disparity, है ना, no disparity, ठीक है। In case हम दूसरा लेते हैं, in case female HDI is greater than the male HDI, that signifies that you can say disparity, the gender disparity is favoring male, gender disparity is favoring male, right? And if you can say female ratio is less than that of male's ratio, that means gender disparity is favoring female, okay, is favoring female. So तीन ऑप्शंस हो सकती हैं, तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मेजॉरिटी सेकंड कंडीशन रहती है, ठीक है। सो इससे हम ऐसे पता लगाते हैं, क्या बेटा, राइट। सो आई एम कमिंग इन ए मिनट प्लीज, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट, कमिंग इन ए मिनट। आਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ 7 दिन तो बस तक करूँगा प्लीज, आधे घंटे का मैं फ्री कोशिश करूँगा, आधे घंटे की मैं कोशिश करूँगा फ्री हो जाऊँ। कोई ना, मैं भी जाऊँगा बस 8 बजे, हैं मैं भी सबक से जाऊँगा, सबक से हां, कब चेतना हो लगी है कि मेरा कुछ मेरे को चाहिए कुछ काम को मैं तो मेरा नहीं काम कोई ना पूरी कर, ठीक है, कुछ बात है। Yes, so I'm back again. Okay, so is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now come on statistics of India about this. और ना पर इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पे आवांगे बेटा, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स पे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ HDI, right? One is HDI, and दूसरा हम लेंगे इंडिया के केस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ईयर्स में लेते हैं, ठीक है, ये आ गया है। एंड तीसरी चीज क्या हम लेते हैं, यू कैन से इसमें द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग वी विल टेक एजुकेशन, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड फोर्थ चीज जो हम यहाँ लेते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड जो फिफ्थ लेते हैं हम एस्टिमेटेड GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम। सो ESTD मीन्स एस्टिमेटेड, GNI पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा GNI, estimated GNI per capita. So we'll take this also, estimated GNI per capita. Is it clear to you? Yes, sir. Okay.
सो इसमें बेटा ये जो HDI है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है, उसमें है SDG 3। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी हो जाएगा, है ना। सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अगेन। ठीक है, ईयर्स जो है हमारे, एंड देन दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3 SDG 4.3 एंड ये है जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.6। कल भी हमने ये बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.6 एंड देन एस्टिमेटेड GNI पर कैपिटा है जो दिस इज सस्टेनेबल गोल 8.5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.5, राइट। सो ये हो गया। अब हम फिगर्स लेते हैं बेटा, यहाँ फीमेल्स की फिगर। जब हम फीमेल्स की फिगर लेंगे तो फीमेल्स की फिगर में बेटा हम ये लेंगे, मैं ब्लैक में लेता हूँ। सो इसमें क्या है 0.574, दिस इज द HDI फॉर फीमेल्स इन इंडिया, राइट। एंड अगर हम इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेंगे तो दिस इज 70.7 फॉर फीमेल्स इन आवर कंट्री, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड अगर हम यहाँ एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेंगे तो हम लेंगे 17.9। अगर हम यहाँ यू कैन से अपने जो 12.9 है हमारा, 12.9 एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.9। और अगर हम यहाँ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेते हैं ये है 4.7, ठीक है, 4.7। और अगर हम यहाँ GDP लेते हैं तो ये है अपना 2625 PPP इन डॉलर्स, ठीक है, 2625 PPP, 2625 PPP इन डॉलर्स। ये हमारा डॉलर्स में इतना बनता है जो PPP बनता है, ठीक है, 2625 PPP इन डॉलर्स। तो ये है फीमेल्स का स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ हम लेंगे बेटा स्टेटिस्टिक्स ऑफ मेल्स आल्सो, हम मेल्स का स्टेटिस्टिक्स लेते हैं, ठीक है। जो मेल्स का स्टेटिस्टिक्स है उसको मैं इस कलर में ले लेता हूँ, चलो ग्रीन कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। मेल्स का स्टेटिस्टिक्स हम लेंगे दैट इज 0.692, 0.692 ये है, ठीक है, जो मेल्स का स्टेटिस्टिक्स है 0.692 है। एंड दूसरा है हमारा जो यू कैन से इसमें दैट इज 68.2 है, जो फीमेल्स की ये है 68.2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो डिफरेंस है ना दोनों में। एंड तीसरा जो एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेल्स के लिए 11.9 है, लेकिन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेंस के लिए 8.2 है। और अगर हम GNI पर कैपिटल लेते हैं तो मेल्स के लिए हमारे कंट्री में कितना है $10,712 PPP, ठीक है, ये। सो यहाँ हम क्या देखते हैं कि देयर इज सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन फेवर ऑफ फीमेल्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो फीमेल के फेवर में है, वो तो हमेशा रहती है। एंड दूसरी चीज है कि फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल्स, सॉरी ये जो है इसका जो HDI है वो कम है एज कम्पेयर टू द मेल्स। सो दिस इज नॉट ए गुड थिंग, इट मीन्स फीमेल की फेवर में नहीं जा रहा है। सो दिस इज देयर। एंड तीसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, द थर्ड पॉइंट व्हाट वी आर सीइंग कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सॉरी एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमने एक्सपेक्ट किए थे कि फीमेल्स के ज्यादा होने चाहिए, है ना। क्यों ज्यादा होने चाहिए? क्योंकि जो मेल है वो एज पर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाता है और फीमेल्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगर कुछ मेल पढ़ना छोड़ भी जाएंगे तो फीमेल्स की जो रेशो है वो ज्यादा होनी चाहिए
है ना, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो ज्यादा होना चाहिए। एंड देन देयर इज द नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ लेंगे, उसमें है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखो, लेकिन एवरेज फीमेल कितने साल पढ़ती है ना, 18 ईयर्स में हमने वही लिया था ना कल, कितने साल पढ़ती है 4.7, ठीक है। सो हियर लाइज द प्रॉब्लम, एवरेज फीमेल इतने साल पढ़ती है और मेल देखो उससे कितने साल ज्यादा पढ़े, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ इनकम की बात करेंगे तो इनकम को लेकर भी देयर इज द डिस्पैरिटी, सो एवरीवेयर देयर इज द डिस्पैरिटी इन इंडिया, ठीक है। सो ये है कंडीशन डिस्पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इंडिया का जो जीडीपी है 0.829 है, 0.829 है, जीडीपी ऑफ इंडिया इज 0.829, ठीक है, 0.829, क्योंकि जीडीपी की जो वैल्यू रहेगी, जीडीपी की, हाँ मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। जीडीपी की बेटा वैल्यू रहेगी यहाँ, ठीक है, ये जो रेशो रहेगी, सॉरी इसका जो जीडीआई की है ना, इसकी रेशो रहेगी बेटा, वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी, जब फीमेल का HDI 0 होगा, है ना, सो देन इट विल बी 0, है ना। सो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ क्या होगा, हाइट ऑफ डिस्पैरिटी, है ना, हाइट ऑफ disparity. This is extreme condition and this usually will not happen in any society, है ना। So this is there, है ना। And 1 कब होगा, जब फीमेल और मेल का HDI इक्वल होगा। So यहाँ क्या होगा, इक्वालिटी, है ना, ये क्या दिखाता है, इक्वालिटी, है ना। और जब इसके बीच में, है ना, रहेगी वैल्यू, तब क्या रहेगा कि देयर विल बी द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बीच में रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। सो हमेशा इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके बेटा, सो नाउ वी विल मूविंग अहेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडेक्स, अब हम उस पर मूव करेंगे। सो नेक्स्ट इंडेक्स है बेटा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इंडेक्स, Sorry जेंडर to interrupt, sir. पैरिटी। Excuse me. यस Can I ask one thing? यस, Sir, why the word estimated is used in the GNI per capita? एस्टिमेटेड, Why the Hello? word estimated is used? Yes, sir. yes, estimated basically because मतलब जो भी हमारा statistics होता है, those are the basically estimates, there are no actual figures, right? So हमने, ठीक है, हमने इसको मतलब एक्सट्रापोलेशन की हेल्प से, मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हेल्प की को लेकर के, तो हमने इसको मतलब कि वर्कआउट किया होता है। सो दैट इज व्हाई वी से इट यू कैन से मतलब एस्टिमेटेड, दिस इज नॉट रियल फिगर। Sir, can we say the low average of the GNI per capita in purchase GNI per capita of India is because of the less contribution of women? Because from the above table, it is clearly seen that males are contributing a lot. Obviously that is a, you know, see फीमेल है जो, फीमेल की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम है, अगर फीमेल की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम है तो फिर उसका कम होगा, है ना। क्योंकि देखो, क्योंकि सी हमारे कंट्री में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होती है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 2 सेक्टर्स में हो रही है, वन इज द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, एंड द सेकंड इज द इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। यू एवरीबॉडी नो अबाउट दिस, है ना। Yes, sir. सो फॉर्मल सेक्टर का जो रिकॉर्ड है, वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फॉर्मल सेक्टर, है ना, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड एंड दिस इज मेजर्ड, राइट। एंड दूसरी चीज है कि जो फीमेल का इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, सो दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। Oh, yes, sir. This is the one of the limitation of the GDP. ठीक है, ठीक है, दिस इज यू कैन से नॉट ऑन रिकॉर्ड, है ना। बट क्या होता है कि फीमेल्स का जो रोल है वो मैक्सिमम इनफॉर्मल एक्टिविटी में रहता है ना, घर में खाना बनाना, कुकिंग करनी, है ना, वॉशिंग करनी, ठीक है, डस्टिंग करनी, है ना, बच्चों की देख रेख करनी, है ना। तो मतलब तो क्या है, मतलब कि इन चीजों की मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इज नेवर कंसिडर्ड,
है ना. So you can say that is why, मतलब despite working for the whole day, है ना, the economic contribution of women is taking as nil. Clear? Got it. Thank you. Okay. सर ये जो डेटा आपने दिया है ये 2019 का डेटा है Yes, बेटा और 2019. ये जो SDCs हैं ये किस हिसाब से दिए जाते हैं किसी भी एक का मतलब कि जैसे SDC को SDC है मेरे को अंजना समझ नहीं आ रही. What are you saying? Please. ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हाँ. ये मैक्सिमम मतलब कितने होते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइडेड और ये किस हिसाब से पर्टिकुलर जैसे EYS को हमने दिया है SDG 4.3 और MYS को किस हिसाब से दिया जाता है. ये बेटा बेसिकली 7 सस्टेनेबल गोल्स हैं. इससे पहले हमने मिलेनियम, हाँ सॉरी 17 उनके भी पॉइंट्स हैं सर जैसे यस ठीक है. उनके अंदर फिर फर्दर मिलके माइलस्टोन्स हैं, है ना, पॉइंट्स हैं उनके अंदर. ओके. सो दैट इज ए सेपरेट टॉपिक, राइट. सो अब वहाँ हमने करना है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जिसे हम GPI बोलते हैं, GENDER, जेंडर पैरिटी इंडेक्स. ठीक है. दिस इज नोन एज द GPI, जेंडर पैरिटी इंडेक्स. ठीक है. सो जेंडर पैरिटी इंडेक्स सबसे पहले तो इसको कौन पब्लिश करता है? डज एनीबॉडी नो अबाउट दिस? Who publishes the gender parity index? Nishant, do you know about this? Hello. I don't. No, sir, I don't. Okay. So this is published by UNESCO. ठीक है. UNESCO, United Nations. ठीक है. Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. ठीक है. So UNESCO की फुल फॉर्म क्या है? United Nations. ठीक है. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, right? Scientific and Cultural Organization. So this is the full form of UNESCO. Okay. And Cultural Organization. This is its full form. Okay. So it means कि ये जो GPI है, okay? GPI is a socio-economic index. So it is a socio-economic index है हमारा, socio-economic index. Okay. ये क्या measure करता है? It measures deprivation of women, ठीक है, you can say on part of education. It measures deprivation of women on part of education. On part of education, ये एजुकेशन के पार्ट पे वुमेन की डेप्रिवेशन मेजर है. तो बेटा ये भी आपने ध्यान रखना है ना. देखो एग्जामिनेशन में इट कैन बी आस्क्ड टू यू कि GDI की कौन सी डायमेंशंस हैं, है ना, एंड आपका जो GPI है उसकी कौन सी डायमेंशंस हैं, है ना. ये डायमेंशंस का भी आपने ध्यान रखना है और कौन पब्लिश करता है ये तो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इसकी डायमेंशन का भी आपने ध्यान रखना है. सो इट मेजर्स द, अगर हम बात करते हैं, it measures the relative access. It measures the relative access, ACCE, relative access. It measures the relative access to education of males and females. Okay? Relative access को measure करता है males and females. ठीक है. So it reflects. सर आवाज नहीं आ रही थोड़ी. आवाज बिल्कुल बंद होगी. Is it problem to everybody? No sir. No, sir. No, sir. अच्छा, who is not getting my voice? मनप्रीत? नहीं सर आ रही है मैंने आवाज. अच्छा, किस स्कूल में मेरी आवाज जा रही? महक? हेलो? Who is not? गौरव. ओके. गौरव बेटा अपने एंड तो चेक करो. ठीक है. ओके बेटा. सो चेक इट एट यूर एंड बेटा. सो ओके. महक पाल. अच्छा ठीक है. गौरव इज नॉट गेटिंग मी. ओके, नो प्रॉब्लम. तो बेटा check it at your end. ठीक है गौरव. ओके. So now it measures the relative access to education of males and females, and
next point. बेटा some disturbance is there. अपना माइक म्यूट कर लो, किसका है ना? some disturbance is there. So next है कि you can say it reflects, ये क्या reflect करता है? It reflects the degree of disparity. It reflects the degree of disparity. Reflects the degree of disparity. Disparity in you can say अपना है primary, ठीक है, primary, secondary and tertiary education. Primary, secondary and tertiary education, इसमें जो disparity है मेल और फीमेल के बीच में, ये इसको मेजर करता है, ठीक है. एंड tertiary education, it measures that, ठीक है, disparity at that stage, ठीक है. It is the ये इसको हम कैसे वर्कआउट करते हैं, हम लिखेंगे it is the ratio of number of females enrolled to that of males enrolled in each of the three levels. हम ये देखते हैं कि तीनों लेवल्स में, है ना, किस में कितना, मतलब किसकी एनरोलमेंट कितनी है, ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि इफ द इंडेक्स वैल्यू इज यू कैन से more than 1, if it is more than 1, then क्या रहेगा, एजुकेशन या इट इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स, ये फीमेल्स की फेवर में रहेगा, ठीक है. इफ इट इज equal to 1, then it means there is a equality in this education, there is no disparity, है ना, on this front, इस front पे कोई disparity नहीं है. And if it is you can say less than 1, अगर ये 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, तो फिर इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इट इज इन फेवर ऑफ मेल्स, तो ये मेल्स की फेवर में जा रहा है. सो ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना, राइट. सो ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है. एंड अगर हम इंडिया का जीपीआई देखते हैं, जीपीआई फॉर इंडिया, तो इंडिया की बेटा जो वैल्यू आ रही है, इंडिया की वैल्यू है, अगर हम इसमें वो 3 लेते हैं ना, हम प्राइमरी ले लेंगे पहले, प्राइमरी, ठीक है. दूसरा हम लेंगे अपर, यू कैन से प्राइमरी एजुकेशन, इसको हम अपर प्राइमरी बोलते हैं. एंड तीसरा पार्ट इसमें हम लेंगे, सॉरी, प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी हो गया, एंड अपर प्राइमरी के बाद हम यहाँ लेंगे प्राइमरी, then there is upper primary, and after upper primary there is further, you can say, secondary education. There is secondary education, and after secondary education there is the higher education. ठीक है. So these are the 4 you can say criteria. So इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन में जो रेशियो है, that is 1.03. It means more number of females are enrolled as compared to males in the primary education, right. दूसरा है, अगर हम अपर प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं तो 1.12 आता है, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं तो 1.04 आता है, ठीक है. तो अगर हम हायर एजुकेशन लेते हैं तो वहां जाके भी 1.04 रह जाता है, ठीक है. सो इट मीन्स अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो एजुकेशन में अब डिस्पैरिटी कम है, नहीं है ना. सो दिस इज द पॉइंट, राइट. सो ये इंडिया का इंडेक्स वैल्यू है, दिस इज फॉर 2018-19, यही अवेलेबल थी अभी तक, ठीक है, फॉर 2018-19. दिस इज द वैल्यू ऑफ
GPI फॉर इंडिया, ठीक है। 2018-19 की वैल्यूज हैं, ठीक है, 2018 एंड 19, ओके। सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, ओके। सो ये हो गया है ना। नेक्स्ट है कि यू कैन से, नेक्स्ट हम देखते हैं कि GPI in India is favorable to women. What can be the reason? This is the next point. GPI in India is favorable to women. Favorable to women. ठीक है। What can be the reasons? इसमें कारण क्या हो सकते हैं कि ये वुमेन की फेवर में है? What can be the reasons? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें कारण क्या, ठीक है। इसमें अगर हम कारणों की बात करेंगे, नंबर 1 है ना, क्या है कि मेल्स हैव अदर ऑप्शंस ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। मेल्स हैव अदर ऑप्शंस ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, दिस इज वन पॉइंट। मेल्स के पास अदर ऑप्शन होती हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, एक तो हम ये पॉइंट लेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लेंगे हम कि गवर्नमेंट एफर्ट्स, है ना, फ्रूट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ द फीमेल, यू कैन से फीमेल्स इन स्कूल्स और एजुकेशन, यू कैन से लाइक दैट, है ना। सो इसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का जिक्र करेंगे कि इन 2018-19 2018-19 in 2018-19, ठीक है, 18-19 the Ministry of Human Resources Development, HRD लिखता हूँ, Human Resources Development of India, ठीक है, of India launched a centrally sponsored scheme, ठीक है, called, ठीक है, समग्र शिक्षा, SAMAGRA, समग्र शिक्षा, SHIKSH। सो ये एक स्कीम लॉन्च की थी हमारी मिनिस्ट्री में 2018-19 में। तो हमने देखना है कि वो जो स्कीम है ना, तो वो कौन सी थी। इससे पहले एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये हमने यहाँ लिखा है CSS, सो इसमें बेटा जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो हम दो किस्म की स्कीम्स लेते हैं। एक होती है सेंट्रल स्कीम, ठीक है, सेंट्रल स्कीम, और दूसरी होती है बेटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मैंने अभी यहाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS लिखा है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। Does anybody knows the difference between the two? Sir, one is entirely contributed by the government, other one a share is paid by the central government. Okay, right. तो बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है। महक थोड़ा सीगा, ठीक है, चलो। सो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट। जो सेंट्रल स्कीम है ना, दिस इज द स्कीम, है ना, which is entirely run by the central government, right? Entirely run by the central government, okay? So इसमें बेटा क्या होता है कि funding as well as administration of the scheme, that is the responsibility of the central government, okay? Funding as well as responsibility, दो important aspect हैं scheme के। एक एस्पेक्ट होता है फंडिंग का, दूसरा एस्पेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो फंडिंग एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बोथ आर टेकन केयर ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और जो
CSS है, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है कि सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मनी, है ना, सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मनी, सेंटर contributes the money, contributes the funds, you can say, contributes the funds, and the scheme is administered by the state government, and the scheme is administered by the state. ठीक है, स्कीम को एडमिनिस्टर स्टेट में करना है, सेंटर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है। और अब हम आते हैं इसके समग्र शिक्षा की जो बात की थी, है ना, तो ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है, ठीक है, द स्कीम कवर्स, ये स्कीम कवर करती है स्कूल एजुकेशन, द स्कीम कवर्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल, इसमें प्री स्कूल से लेकर के फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, ये 12th क्लास तक की एजुकेशन को कवर करती है, ये जो हमारी स्कीम है ना, टू क्लास 12। इट एम्स एट, इसका पर्पस क्या है, इट एम्स एट securing inclusive and equitable quality education at all levels of स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल एजुकेशन के सभी लेवल्स के ऊपर हमने मेल और फीमेल को इक्वल एजुकेशन देनी है, इक्वल क्वालिटी, हमने फीमेल्स को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, द स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड टू, इस स्कीम का पर्पस क्या है, द स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड टू, the scheme has been designed to bridge, right? The scheme has been designed to bridge social and gender gaps. Okay? Social and gender gaps in school education. School education में जो social and gender gap है, उनको bridge करने के लिए ये scheme है। Okay? So next important point इसमें हम देखेंगे कि it is under, यहाँ हम लेके आ रहे हैं, it is under this scheme, this scheme लिख लो या आप समग्र शिक्षा लिख लो, it is under this scheme that the government sanctions, okay, KGBV small s, okay, KGBV small s, BV and इसके साथ हम small s लिखेंगे, ये ठीक है, KGBV small s means है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, इसको आप स्पेलिंग लिख सकते थे, सॉरी, कस्तूरबा गांधी, KASTURBA, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसका नाम है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ, कहाँ स्टार्ट किया है इनको, ये विद्यालय कहाँ खोलेंगे, इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं ये वहाँ खोलेंगे। ठीक है, इन इंडिया टू प्रोवाइड quality education to girls from disadvantaged groups, जो भी disadvantaged groups है सोसाइटी के, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, सो ये जो हमारे
ये जो हमारे स्कूल्स हैं, जिसे हम ये विद्यालय बोलते हैं, ठीक है, ये जो स्कूल्स हैं, ठीक है, केजी डीवीज हैं जो, सो these are the रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना क्योंकि कई बार ऐसी क्वेश्चन बात पूछ लेता है। These are the residential schools from class 6 to class 12। 6 से लेके 12 तक के ये स्कूल्स हैं, क्लास 6 to class 12 for girls belonging to groups like SC, ST, scheduled caste, scheduled tribes, OBC, minority and BPL। इन फैमिलीज के जो बच्चे हैं, जो गर्ल चिल्ड्रन हैं, वो यहाँ एजुकेशन ले सकेंगे 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। सो यू कैन से, बस थोड़ा सा आप मैं और करूँगा, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स इन इंडिया, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स इन इंडिया, blocks in India are educationally backward blocks in India are marked on the basis of twin criteria। इसके दो क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस के ऊपर हम एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक को मार्क करते हैं, ऑन द ट्विन क्राइटेरिया। इसके दो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? ऑन द ट्विन क्राइटेरिया, ठीक है। सो वन क्राइटेरिया है जो इसमें फीमेल लिटरेसी रेट, FLR means female literacy rate, just the one criteria, female literacy rate, right? And the other criteria is a gender gap in literacy, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि लिटरेसी में जेंडर गैप कितना है, लिटरेसी में जेंडर गैप कितना है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जेंडर गैप इन लिटरेसी, ठीक है, राइट। एंड ये भी है कि सम ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट ओनली, ऐसा भी हुआ है। वैसे क्राइटेरिया ये दो बनते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक्स को ओनली फीमेल लिटरेसी रेट के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, ओनली उस बेसिस पे भी इसको आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। सो ये होगा, राइट। सो ये आज का लेक्चर था। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आपसे लीव लेना चाहूँगा बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क, राइट। सो आई होप यू वोंट माइंड दिस, कोई माइंड तो नहीं करूँगा? नहीं नो Okay, so hope you got properly what I taught today, है ना? Yes, sir. You received it well, है ना? So ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, yes, पूछो। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ऑब्वियसली बेटा केंद्रीय विद्यालय तो है ही इन्हां दे है ना। और ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। बेटा ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖਰੇ। Yes, if anybody want to ask anything or want to say something, I am sitting before you. Sir, to what extent does these reports of the organization that we are discussing from few days, such international organization like UN and UNESCO, etc., yes, can considered be reliable? For example, in the recent times, we have seen that in the times of epidemic like Corona, WHO is favoring China, maybe because of funding or so. So there is always a tendency that they are gonna support those countries who are funding them more or not. So yes. can these be considered reliable data or not? So beta basically I would just like to explain है ना कि
जब तक हमारे पास कोई भी मतलब जब तक हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है एंड हमारे पास विटनेस नहीं है, तब तक हम किसी चीज को हम क्लियरली नहीं कह सकते कि WHO इज सपोर्टिंग चाइना। दिस इज माय वन पॉइंट। ठीक है, प्लीज सुन लेना, उसके बाद आप अपना व्यू दे सकते हो, मैं अपना व्यू रख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज दीज आर यू कैन से सब्जेक्टिव थिंग्स and no international authority has yet recognized it that you can say China is responsible for this COVID-19. This is the point, right? And दूसरी बात है कि no doubt हर एक मतलब in every organization है ना, some politics is played there. This fact cannot be denied. ठीक है, this fact cannot be denied because UNESCO was pressurized by USA to that extent, है ना, when it recognized the Palestine few years back, that you can say मतलब USA has cut the funding support to this UNESCO because USA was opposing the entry, opposing the recognition of Palestine by this UNESCO. Okay, so Yes, that can be there, है ना, because there are the groupings, है ना, and there are the मतलब divergent opinions can be there, है ना, so beta that is there, but still क्या है, but still these are the multilateral organizations because they are represented by the different countries of the world, right? And their management is also, you can say, joint management by the various countries, you know, through a body which has been selected or you can say nominated for the purpose. So we can say, more or less, these data are considered to be, you can say, authenticated, and we don't have any other source of information which can be so much unbiased, na, which has been provided by these organizations. Okay, so how can you believe on the Moody's data? How can you believe on some other data by the private organization? Yes, so sir. Actually, I was reading yes. a book on the international relations recently. It was written by one of the UN delegates. Okay. Yes. Sir, he has written about these things that they are these organizations are sometimes partial towards some of the countries that are funding more. Yes. That is a fact. Because you can say that politics cannot be denied at any scale. Because this is the human nature, to you can say manipulate everything for his own benefit, है ना। ठीक है, ये तो हम बेटा नर्सरी क्लास में से करते आ रहे हैं। yes, करते हैं ना। yes, ठीक है, हाँ ठीक है। सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर है ना। सो cannot be segregated। हाँ ठीक है। सो वो तो बेटा रहेगा, लेकिन हमने बस खाली इसको हमने मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है ना। तो हम जितना इसको मिनिमाइज कर लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, तो हाँ, सो बेटा ये रहता है। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? नथिंग। सो ओके बेटा, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू sir। ओके बेटा, कीप ऑन गिविंग योर फीडबैक प्लीज, राइट। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ओके बेटा, ओके, वी विल मीट टुमारो अगेन। ठीक है, कीप ऑन गिविंग योर फीडबैक एंड टुमारो वी विल कम विद ए न्यू लेक्चर। ठीक है, ओके बेटा, ओके, टेक केयर।